Hey champs, what's up? So boys and girls, कैसे हो आप सब लोग? That is good. तो आज हमारा पहला लेक्चर है and we have to start. There is a mathematics, that is introduction to the mathematics of the first chapter. Basically, this lecture is not for the whole study because I know in lockdown you guys are getting bored already. ठीक है? तो पढ़ाई तो हो ही रही होगी, बिल्कुल भी नहीं. तो एक बिल्कुल स्ट्रेटेजी के साथ प्लान किया है इस वीडियो को. सबसे पहले वी विल सी कि व्हाट इज मैथमेटिक्स, व्हाट आर द यूज ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ मैथमेटिक्स. जो आज तक आपने इतनी मैथमेटिक्स पढ़ी हो, फ्यूचर में इतनी अच्छी मैथमेटिक्स पढ़नी है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द नीड ऑफ इट. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अवर चैप्टर. बेसिकली हम काफी अच्छा कंटेंट पढ़ने वाले हैं. आफ्टर दैट एट द एंड देयर विल बी अ मोटिवेशनल वीडियो सो दैट यू गाइस कैन मोटिवेटेड and stay happy and ahead. So let us do something and sharing a video with you. What is the mathematics? Let's have a look. Go through.
Cool. So I think that you guys have enjoyed that video, because basically it was the application of the mathematics, what we are going to deal in your future. Okay. So basically in this lockdown, that is the non-opening of the school and the coachings, you guys should study. That's why we are here to guide you, because life is a race and you have to be run fast to be smart. For that, you guys have enrolled earlier. That is very good. And we are here with you. And basically, you guys should study at least 3 to 4 hours. इस लॉकडाउन में भी टाइम निकालो, 3 से 4 घंटे पढ़ो. That is very very important, because there is a quite very tough competition. And yes, you will rock, we will rock. तो फिर चलिए शुरू करते हैं. So just like the introduction, here these are the you guys, the boys and girls. Let me just take to the full screen mode. This one is me. Okay, my presence is there with you. So we are starting a new chapter, that is rational numbers. The chapter number 1 of the class 8, that is rational numbers. So first of all, students, some guidelines is there. Notebook निकाल लो, notebook and pen is there with you. ठीक है, मेरे साथ साथ लेक्चर में पॉइंट टू पॉइंट समझते जाओ एंड लिखते जाओ. ठीक है, we will bit clear with our theory, bit clear with our questions, and at the end I am going to give you the assignment. ठीक है, the assignment is about कि you have to submit me till Tuesday night. Assignment का solution आपको मुझे submit करना होगा. I have the same WhatsApp and calling number. ठीक है, I will send a video solution of that assignment on Wednesday. ठीक है, so it is compulsory for all to submit the assignment. Getting my point? ठीक है, so let's start rational numbers. ठीक है, rational numbers. You just starting. So what are the objectives of this chapter, which is quite important to understand and write everything? The objectives. So at the end of this lecture, you will be able to know what? First, distinguish between natural numbers, whole numbers, and integers. So you guys will be able to differentiate कि natural numbers क्या होते हैं, whole numbers क्या होते हैं, और integers. So इनमें क्या difference क्या होता है? ठीक है. Second one is define the rational numbers. You will be able to define what are the rational numbers and how to write it. Third, you will be able to learn what is the addition, what is the subtraction, multiplication and division of rational numbers basically. ठीक है, ये जो tools हैं वो rational numbers में कैसे apply करेंगे वो सीखने वाले हैं. After that, you guys will be able to know what is the role of 0 and 1 for the rational number. ये 0 और 1 काफी important tools हैं. इस 0 का and 1 का आखिर importance क्या है rational numbers में. After that, you will be able to understand additive inverse and multiplicative inverse of rational numbers. Rational numbers की additive और multiplicative inverse की properties को आप लोग सीख रहे होंगे. ठीक है, and last and not the least, but the rational numbers between any two given rational numbers. मतलब दो rational numbers आपको दिए हैं, दो rational numbers अगर आपको दिए हैं तो in between them you have to find one rational number. So how you will be able to find it? So these are the objectives of our lecture today. So I'm just waiting for you. ठीक है, तो start हो जाइए फटाफट and just write everything displayed in your screen. So guys, I'm just waiting. You have 1 minute. Write everything in your class notes. You guys can connect with me or parents if you feel any difficulty or any doubt. Just pause it and write everything. I will be disturbing you in between. ठीक है, बैठे बैठे तुम भी बोर हो जाओगे. So as I have told you, I think this lecture has been divided into different groups. First one, introduction of mathematics done. Now we will read the chapter, and at the end you have a one motivational video. ठीक है, cool. Are you guys getting my point? चलें. I'm just waiting for you. Just write it. ठीक है, those who have done it, ठीक है, यहाँ तो फिर students you just pause it so that I can move forward. आप pause कर लो वीडियो को, बैठ के आराम से लिख लो. ठीक है, let us move forward. So first of all, what is the number system? Number system के अंदर हम आ जाते हैं whole numbers. So what are these whole numbers? Whole number starts from 0, 1, 2, 3, 4 up to infinite. ठीक है, ये बहुत आगे तक एरो जाएगा. तो whole number starts from 0. ठीक है, just for याद करने के लिए. ठीक है, ये कुछ खाने का मटेरियल नहीं, ये डस्टर है, ये चौक है. ठीक है, खाने का दिख के. होल नंबर्स मींस WHOL. ये याद करने का तरीका, अगर बीच में O आता है, O तो मतलब 0 से स्टार्ट होता है, ये हिंट है बस. So it starts from 0 and it up to infinity. तो ये एरो आप डायग्राम बना लो, 0, 1, 2, 3, 4 up to 10 लिख लो, बिल्कुल अच्छे से डायग्राम बनाना है ना. बी वेरी केयरफुल. दिस आर द होल नंबर्स और अप टू इनफाइनाइट. ठीक है, गुड. आई एम जस्ट वेटिंग. लेट्स राइट डाउन एवरीथिंग.
ठीक है, सो देन पॉज इट, लेट्स मूव फॉरवर्ड. जिसका हो गया वेरी गुड, जिसका नहीं हुआ देन पॉज इट. Now come to the natural numbers. What are the natural numbers? Natural number starts from 1, 1, 2, 3, 4 up to infinity. ठीक है, तो natural number starts from 1, उसमें 0 नहीं आता है. नंबर लाइन बनाओ और 1 से लेकर ऐसे एरो बनाओ कि 1 से लेकर अप टू इंफिनिटी तक जाने वाले सारे नंबर्स हैज बीन डिफाइंड एज नेचुरल नंबर्स. गेटिंग? पक्का? चलो सॉल्व लिख लो. ठीक है, चलो आगे पॉज कर लो जिसको लिखना बचा है. Now come to the integers. So integers has been differentiated into 3 categories. First one is the positive integers, which is 1, 2, 3 up to infinity. Second one is the negative integers. लिख लेना, यहाँ पे एरो करके लिखना positive integers. ठीक है. Second one is negative integers, मतलब -1, -2, -3 up to minus infinity पूरा. तो एरो करके यहाँ लिख देना negative integers. And third category has been defined as only 0. So we are defined as positive integers, negative integers, and then 0. ठीक है, तो बढ़िया से स्केल लो. हाँ अच्छे से स्केल लो, पेंसिल पेन से ये डायग्राम बना लो जिससे भी नियर कॉपी. एंड दीस आर द इंटीजर्स. ठीक है, आई होप यू गाइस आर गेटिंग माय पॉइंट. ठीक है, वी विल एंजॉय, डोंट वरी, जस्ट वेट. नाउ द रैशनल नंबर्स. तो रैशनल नंबर्स आर जस्ट लाइक की a number in the form of the p by q. Rational numbers are the numbers is in the form of the p divided by q, where q is a denominator and q cannot be equal to 0. q denominator में होता है और q 0 नहीं हो सकता है. ठीक है, तो p by q that is 0, 1, 2, 3. अगर 0 और 1 के बीच में एक नंबर रैंडमली लिखा that is 1/2. 1/2 is a rational number. हाँ, -1/2 is also rational number. वैसे बहुत सारे rational numbers होते हैं. In the terms of p by q, that is p divided by q, where q is not equal to 0. ठीक है, I'm just waiting, you guys just write it. Both should be parallel. मैं आपको समझाते जाऊंगा and you guys can write it. So एक लिंक बनी रहेगी. ठीक है, now रैशनल नंबर्स को बहुत अच्छे से समझते हैं. A rational number is a number. रैशनल नंबर एक नंबर है that can be written as a simple fraction, जो बहुत ही सिंपलेस्ट फ्रैक्शन और रेशियो में लिखा जाता है. That is p by q is a rational number. p divided by q, है ना, यहाँ पे q that is denominator cannot be equal to 0. ठीक है, तो just like the examples I should say, देखो 1/3, 1/5, 1/7, these are all the examples of p by q. यहाँ पे q that is denominator 0 के इक्वल नहीं है. One more examples are there. 5, बस 5 को 5/1 लिख लो, p by q की फॉर्म में हो गया ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं है. Then it is 3 of 1/4 mixed fraction. Then it is 0.45. It is 6.4. It is 1.732. Are you getting it? क्योंकि डेसिमल वालों को हटा दो. If you remove the decimal 64/10, उसको और कैंसिल आउट करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख दोगे. I said simple fraction. सबसे सिंपल फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख दो. That is the form of the p by q, which is the rational numbers. Are you getting it? That's very good. I'm just waiting for you so you guys can write it. Okay, just write as soon as possible. Else no problem. You guys can pause the video and write it. Now, as I have explained you, 5 can be written as 5/1, 0.45 can be written as 45/100, 1.732 can be written as decimal हटा लो तो this divide by 1000. 3 1/4 can be written as 13/4. 6.4 can be written as 64/10. Are you guys getting it? ठीक है, तो जिसने ये नहीं लिखा है प्लीज लिख लो. अब तो लिख लो. हाँ, अब मैंने लिखवाया तो लिखना ही पड़ेगा ना. ठीक है, हाँ. Now, what are the simplifying rational numbers? जो मैंने आपसे कहा है कि सिंपलेस्ट फॉर्म, तो व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म? ये है क्या सिंपलेस्ट फॉर्म जो मैं कह रहा हूँ? सिंपलेस्ट फॉर्म इज द लोएस्ट फॉर्म, दैट इज द utmost divisible form. Just like 15/25 को कैसे लिखते हैं? Observe very carefully, numerator and denominator both are divisible by 5. ठीक है, तो मैंने इसको डिवाइड किया 5 3s and 5 5s, तो इट कन्वर्ट इनटू 3/5. तो 15/25 इज कन्वर्टेड इनटू 3/5. 3/5 से छोटा कन्वर्जन आपके पास नहीं है. ठीक है, आप 3/5 से छोटा कुछ नहीं लिख सकते. तो सिंपलेस्ट फॉर्म इज द लीस्ट पॉसिबल फॉर्म जिसके बिलो आप कुछ नहीं लिख पाओगे. तो दैट इज अ नीडेड, और रैशनल नंबर इज एक्सप्रेस्ड इन द सिंपलेस्ट फॉर्म. तो सिंपलीफाइंग रैशनल्स. ठीक है, ये 5 से डिविजिबल है इसलिए मैंने इनको छोटा किया. सबसे लीस्ट में लेके आना कि जिसके आगे डिविजिबिलिटी नहीं. डन ना, राइट इट. नाउ एडिशन ऑफ द रैशनल नंबर्स. ठीक है, चलो हेडिंग डालो प्रॉपर्टीज. हेडिंग डालना प्रॉपर्टीज, लिखो प्रॉपर्टीज, PROPERTIES, प्रॉपर्टीज.
तो नंबर 1 प्रॉपर्टी इज एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स। ठीक है, किसी को अगर स्पीड लग रही हो तो यू गाइस कैन पॉज द वीडियो एनी टाइम, ठीक है, सो दैट यू कैन राइट प्रॉपर्ली। एडिशन ऑफ रैशनल नंबर्स, रैशनल नंबर इज a डिवाइडेड बाय b प्लस c डिवाइडेड बाय d व्हिच इज इक्वल टू। अब अगर इन दोनों को ऐड करना है तो जस्ट केयरफुल, यू हैव टू टेक द एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर का एलसीएम यू हैव टू टेक इट, ठीक है। तो व्हाइल टेकिंग द एलसीएम इट इज b into d, now cross multiply, that is a into d plus b into c. I think you guys have studied this thing in class 6th 7th, ठीक है, now you are in class 8, so you are quite comfortable about it. That is denominator is b into d, here it is a into d plus b into c. Now let's take an example. Suppose I will take 5 by 4 plus 1 by 4. अगर मैंने 5 by 4 plus 1 by 4 किया तो नीचे 4 से एक साथ रख दिया, ऊपर 5 plus 1, that is finally 6 by 4, that is finally 6 by 4. So are you getting it कि addition कैसे करते हैं rational numbers में? First of all you have to take the LCM, you have to take the LCM, and for this here you have to cross multiply a into d plus b into c. This example was just like 5 by 4 plus 1 by 4. यहाँ लिखो 5 by 4 plus 1 by 4, क्योंकि यहाँ पे तो डिनोमिनेटर सेम था तो हमारा एक साथ आ गया और न्यूमरेटर ऐड हो गया, दैट इज 6 by 4. कूल, ठीक है, इसे लिख लो, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। So let us move forward. Subtraction of the rational numbers. Second point is subtraction of rational numbers. हम rational numbers को subtract करने जा रहे हैं. That is same here. A upon b minus c upon d. Just see the denominators. ठीक है. अब हमें LCM लेना होगा. It is compulsory. So to take the LCM, b into d should be there. b into d. यहाँ पे आएगा a into d because you have to take the LCM. So numerator here it become a into d minus b into c divided by b into d. Are you getting it? This is quite easy. Just take an example. Example लिखो यहाँ example. 5 by 7 minus 1 by 7. अगर 5 by 7 minus 1 by 7 दिया है तो this is very easy because denominator is same. So by taking LCM you will get 7 only. And numerator is 5 minus 1, that is 4. So finally you got 4 by 7. You got 4 by 7. ठीक है? So this is quite very easy because you have to take the LCM. Be careful, you have to take the LCM. ठीक है? Very very good. Just write down everything. I am just waiting for you. These properties are quite very important क्योंकि basic strong हो रहे हैं. जितना आपका basic strong होगा, multiplication, division, taking the LCM, these things will be very important in your class 11th and 12th. Getting? Chalo, so let me move forward. Multiplication of rational numbers. For the multiplication of rational numbers, this is a upon b into c upon d. This is quite very easy. Just multiply the numerators. Numerator that is a into c divided by denominator that is b into d. बहुत ज़्यादा easy है. Numerator is a into c divided by b into d. That's quite very easy. So do we have an example? Just we have an example. चलो इसको लिख लो. I'm just waiting for you. Just you have 10 seconds. बेसिकली दिस इज अवर इंट्रोडक्शन, दिस इज अवर फर्स्ट लेक्चर. सो हम बहुत ज्यादा नहीं पढ़ने वाले, आप पे इतना प्रेशर नहीं देने वाले. जस्ट लाइक वी गॉट टू नो कि व्हाट इज मैथमेटिक्स एप्लीकेशन. अभी हम कुछ लिटिल बिट अबाउट पढ़ने वाले हैं एट द एंड ऑफ द मोटिवेशन. फ्रॉम नेक्स्ट लेक्चर ऑनवर्ड्स वी आर गोइंग टू डील विद हेवी, अच्छा खासा, ठीक है. बिकॉज अभी लॉकडाउन में ही हो, इतना पढ़ने का मन नहीं है. अगर मैंने एक घंटा पूरा बैठा के पढ़ा दिया तो कुछ नहीं आएगा तुम्हें समझ में. नाउ कम टू द एग्जांपल्स. दिस इज 1/3 into 3/5. So how to proceed? Numerator ऊपर multiply करो, that is 1 into 3, और नीचे that is 3 into 5. So numerator is 3 1s are 3, denominator is 5 3s are 15, and cancel out in the simplest ratio form, that is 3 1s and 3 5. That comes out to be 1/5. Very good, very good. I hope you guys getting my point. These things are easy, cool. Now this one is a division. ठीक है, यहाँ एक मिस्टेक हुई. यहाँ लिखो डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स. डिविजन दैट इज DIVISION. डिविजन ऑफ रैशनल नंबर्स. आपको डिवाइड करना है रैशनल नंबर्स को, ठीक है.
So this is A divided by B divided by C divided by D. It is A by B divided by C divided by D. हमें डिवीजन करना है बेसिकली. दिस इज डिवीजन ऑफ रैशनल नंबर्स. सो हाउ टू डिवाइड? द प्रोसेस इज फर्स्ट ऑफ ऑल जो डिवीजन के इस तरफ दैट इज राइट हैंड साइड में टर्म लिखा है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस डिवीजन जस्ट लाइक मल्टीप्लाई डी बाई सी. देखो क्या प्रोसीजर फॉलो करना होता है कि चेंज द साइन ऑफ द डिवीजन बाय मल्टीप्लिकेशन. इस डिवीजन साइन को मल्टीप्लिकेशन साइन बनाओ और इसको रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज उल्टा कर दो, इसको लिख दो डी बाई सी. दिस इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर टू फॉलो. जस्ट लाइक आप a बाय b लिखो इनटू उल्टा कर दो d बाय c. सो डिवीजन को हमने कन्वर्ट कर दिया मल्टीप्लिकेशन. आई अगेन सेइंग इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कैसे कन्वर्ट करना है. यहाँ पे लगा दो मल्टीप्लिकेशन का साइन और उसको कर दो उल्टा d बाय c. आपके राइट हैंड साइड इस वाले एक्सप्रेशन को आपको उल्टा करना है. ऐसे तो किसी को भी कर सकते हो बट इट्स क्वाइट गुड टू डू दिस. जस्ट द पैटर्न की इसको आप उल्टा कर दो राइट हैंड साइड को इनटू d बाय c. Now a by b into d by c, it means numerator multiply, that is a into d और नीचे b into c. ये बहुत ज्यादा इजी. सपोज करो एक एग्जांपल लिखो, मैं बता रहा हूँ. एग्जांपल इज 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6. एग्जांपल लिखो 1/4 डिवाइडेड बाय 1/6. अब इट इज अ डिवीजन का फॉर्मूला है, तो डिवीजन के फॉर्मूले को कन्वर्ट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में. तो 1/4 पहले, फिर मल्टीप्लाई. क्वेश्चन में था 1/6, तो रिवर्स इट, दैट इज 6/1. तो 1/4 into 6/1. तो ऊपर 6 1 6 और नीचे 4 1 4. तो इट केम आउट टू बी 3/2. ठीक है, आर यू गाइस गेटिंग इट ना? कूल. तो जस्ट राइट डाउन एवरीथिंग, आई एम जस्ट वेटिंग. अच्छा, ये पीछे लिखना होगा तुम लोग को. देखो फर्स्ट ऑफ ऑल लिखो डिवीजन a by b डिवाइडेड बाय c by d. ठीक है, फिर अगले स्टेप में लिखो, उसे कर दो मल्टीप्लाई d by c. मल्टीप्लाई करके हमने कर दिया राइट हैंड साइड के एक्सप्रेशन को उल्टा. ठीक है, ये लिखो. ब्रैकेट में चाहो तो ये चीज लिख लेना फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग. आफ्टर दैट राइट दिस एग्जांपल. कूल. तो फिर आई थिंक चले आगे. जिसका बचा यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट. नाउ the role of the 0 and 1 is very very important. Basically students, this is quite very important. What is the role of 0? 0 is an additive identity. 0 is an additive identity. मतलब 0 को अगर आप किसी के साथ ऐड कर देते हो तो वो एक्चुअल नंबर को कभी भी कोई फर्क नहीं पड़ता है. इसीलिए एडिटिव, क्योंकि 0 को अगर ऐड किया तो वो एक्चुअल नंबर एज इट इज वापस आते हैं. एडिटिव आइडेंटिटी मींस बाय एडिंग अ 0 द नंबर रिमेन्स द सेम, देयर विल बी नो चेंज. तो दैट इज, ऐसा कौन सा नंबर है जिसके साथ ऐड कर दूं तो कोई फर्क ना पड़े? दैट इज 0. तो 1/7 प्लस 0 करते ही 1/7 आया. इट मींस 0 ने एक्चुअल नंबर को बिल्कुल नहीं छेड़ा. दैट द सेम नंबर केम आउट टू बी. इट मींस 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स. ठीक है, तो 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी ऑफ रैशनल नंबर्स. कूल. आई एम जस्ट वेटिंग, जस्ट राइट इट डाउन. नोट्स वगैरह अच्छे से बना लो भाई, बिकॉज दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. वी हैव स्टार्टेड अवर दीज फाउंडेशन लेक्चर्स एंड फॉर द असाइनमेंट एज आई हैव टोल्ड यू, असाइनमेंट को रफ कॉपी में या असाइनमेंट कॉपी में सॉल्व कर लेना है और मुझे ट्यूसडे नाइट तक व्हाट्सएप कर देना है. ठीक है, आई विल बी चेकिंग ऑल योर सॉल्यूशंस. ठीक है, चलो आई थिंक यू गाइस हैव रिटन. चलो मैं थोड़ा फिर आगे चलता हूँ. देखो, नाउ इट कम आउट टू बी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. व्हाट इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मींस मल्टीप्लाई किया. मल्टीप्लाई ऐसा कुछ करना है कि एक्चुअल नंबर कभी चेंज ना हो. अब एक्चुअल नंबर के साथ आप ऐसा क्या मल्टीप्लाई करोगे जो कभी चेंज नहीं होगा? सो इफ यू गाइस आर गेटिंग कि एक्चुअल नंबर के साथ यू शुड मल्टीप्लाई 1. एक्चुअल नंबर के साथ यू शुड मल्टीप्लाई 1, देन मल्टीप्लाइंग एनी नंबर बाय 1 इट केम आउट टू बी द सेम नंबर. अरे 1/7 को अगर मैं 1 से मल्टीप्लाई करता हूं तो 1/7 ही आएगा. तो क्या मेरा एक्चुअल नंबर चेंज हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं हुआ सर. इट मींस 1 is a multiplicative identity of rational numbers. 1 एक ऐसा नंबर है, अगर मैं उसको एक्चुअल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करूं तो एक्चुअल नंबर विल रिमेन्स एक्चुअल नंबर. मतलब जो ओरिजिनल नंबर है वही रहेगा एज इट इज, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा. सो जस्ट दीज टू थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. एडिटिव इनवर्स मतलब आपको ऐसा क्या ऐड करो जो नंबर विल बी रिमेन सेम, दैट इज 0. 0 is known as the additive identity. What is multiplicative identity? Multiplicative identity is a number जब आप मल्टीप्लाई करो तो नंबर एज इट इज रहे.
दैट इज अगर आप 1 से मल्टीप्लाई करते हो तो नंबर विल रिमेन सेम एज इट इज. आर यू गाइस गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है, आई एम जस्ट वेटिंग. राइट इट. जो भी लिखा है स्क्रीन पे लिख लो. ठीक है, चलो आगे चलते हैं. नाउ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. देखो, दैट वाज अ एडिटिव आइडेंटिटी. वो एडिटिव आइडेंटिटी थी कि आपने ऐड किया जीरो को. ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है कि आपने मल्टीप्लाई किया और जिससे नंबर्स चेंज नहीं हुए. नाउ दिस वन इज अ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. दिस वन इज अ एडिटिव एंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. So what is this? First of all, this law number line, ये 0 है, 1 है, ये 2 है, ये 3 up to infinity. This one is -1, -2, -3. अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे ना, थोड़ा सा, तो ये इनवर्स है. 1 का इनवर्स है -1. इनवर्स मतलब रेसिप्रोकल नहीं होता. यहाँ पे मिरर इमेज होती है. 1 का पॉजिटिव का नेगेटिव एंड नेगेटिव का पॉजिटिव. तो 1 का मिरर इमेज 0 के अबाउट -1, 3 का -3, 7 का -7. तो जस्ट लाइक अ मिरर. ठीक है, मान लो 0 पे एक मिरर रखा है और जो सारे पॉजिटिव वो नेगेटिव में कन्वर्ट हो गए, जो सारे नेगेटिव है वो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो गए. सो दीस आर द इनवर्स. ठीक है, तो 1 का इनवर्स क्या होगा? 1 का इनवर्स है -1. इनवर्स आर द थिंग्स कि अगर आप उन दोनों चीजों को ऐड करो तो आ जाए 0, बिकॉज इट इज एन एडिटिव इनवर्स. एडिटिव इनवर्स. तो -1 इज द नेगेटिव बोलो, आप चाहे तो नेगेटिव बोल लो और एडिटिव बोल लो. तो -1 इज द नेगेटिव और द एडिटिव इनवर्स ऑफ 1. तो -1 जो है वो नेगेटिव या तो एडिटिव इनवर्स है 1 का. दैट इज 1 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं, 1 के साथ ऐसा क्या ऐड करूं, तो 1 के साथ मुझे -1 ऐड करना चाहिए ताकि वो 0 बन जाए. ठीक है. सिमिलरली फॉर द 3/7. तो फॉर 3/7 आपको 3/7 एक पॉजिटिव नंबर है, उसके साथ ऐसा क्या ऐड करना होगा कि वो 0 बन जाए. ठीक है, तो 3/7 के साथ जो पॉजिटिव नंबर है उसके साथ उसका एज इट इज नेगेटिव नंबर दैट इज -3/7 आपको ऐड करना चाहिए सो दैट वो 0 बन जाए. तो 3/7 प्लस -3/7 इक्वल्स टू 0. तो इन दोनों को ऐड करके क्या आ रहा है? 0 आ रहा है. तो -1 is the negative or the additive inverse of 1. Are you getting it? So what is the additive inverse? ठीक है, 1 का -1 एडिटिव इनवर्स है. सपोज करो -4 का +4 एडिटिव इनवर्स है, सो दैट दोनों को ऐड करके 0 बन जाए. तो हियर -1 is the negative or additive inverse of 1. Cool. I think you guys are getting my point. So I am just waiting. You guys can write everything from the screen. ठीक है, so let us move forward. जिसका स्टूडेंट्स का लिखना बचा है, they can pause the video and write. Now, multiplicative inverse. So this one is a multiplicative inverse. तो multiplicative inverse क्या होता है? देखो, suppose a number is 7/19. तो 7/19 के साथ मैं ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं? आई एम सेइंग मल्टीप्लिकेटिव. ऐसा क्या मल्टीप्लाई करूं सो फाइनल रिजल्ट 1 आ जाए. फाइनल रिजल्ट 1 आ जाए. बी वेरी केयरफुल. एडिटिव इनवर्स में क्या था? फाइनल रिजल्ट 0 था. एडिटिव इनवर्स में आंसर आना था 0. तो 1 के साथ -1 किया, ऐड किया. 3/7 के साथ -3/7 ऐड किया. ठीक है, तो सिमिलरली वी आर हियर फॉर द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. मुझे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए? ठीक है, तो सपोज द नंबर इज 7/19. तो 7/19 के साथ मुझे ऐसा क्या मल्टीप्लाई करना है? सो वी हैव टू मल्टीप्लाई 19/7. वी हैव टू मल्टीप्लाई 19/7. क्योंकि 7/19 के साथ अगर आप उसका जस्ट रेसिप्रोकल दैट इज 19/7 मल्टीप्लाई करते हो तो 7 7 कैंसिल आउट, 19 19 कैंसिल आउट, आंसर केम आउट टू बी 1. तो बेसिकली जो 19/7 एक नया नंबर हमने मल्टीप्लाई किया, तो बस 7/19 को क्वेश्चन में दिया है. ठीक है, तो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या रेसिप्रोकल इज 19/7. तो 19/7 इज द रेसिप्रोकल और द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 7/19. ठीक है, सो दैट दे कैन कैंसल आउट एंड केम आउट टू बी 1. 19/7 is the reciprocal or the multiplicative inverse of 7/19. Are you guys getting my point? Very good. Now,
One more topic is there. Acha, sorry. You just can write everything from the screen. I'm just waiting. बीच बीच में थोड़ा बहुत साउंड आ रहा होगा पीछे बैकग्राउंड से, तो प्लीज अ बिट ऑफ एडजस्ट इट बिकॉज everyone is at home, is in lockdown and household activities are going on, so we are trying but noise is there. ठीक है, तो try to ignore it यार, यही बातों पे ध्यान दो, तुमने बैकग्राउंड में क्यों ध्यान दे, ठीक है. So you guys will be enjoying your lecture, I think. You will be enjoying your lockdown also. कोई पढ़ाई वढ़ाई तो हो नहीं रही होगी, है ना, बट यू शुड बी स्टडी एटलीस्ट दिन के, आई टोल्ड यू ना, 3 से 4 घंटे निकाल के पढ़ लिया करो, बिकॉज दैट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट. ठीक है, जैसे बीच बीच में मैं बकवास करते रहता हूँ, ठीक है, सो दैट अ बिट ऑफ इंटरेक्टिव, बोरिंग ना लगे. लेट अस मूव अगेन. एक सेकेंड. हाँ, लगता है हम बाहर आ गए फुल स्क्रीन से. नाउ ठीक है, फाइंडिंग रैशनल नंबर. अ न्यू टॉपिक इज फाइंडिंग रैशनल नंबर्स. तो फाइंडिंग रैशनल नंबर्स, सपोज करो एक नंबर लाइन 0 1, इन दोनों के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स हो सकते हैं. देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 0 and 1 एंड एनी नंबर्स. ठीक है, सो जस्ट वी आर ट्राइंग टू राइट फ्यू. ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर मुझे लिखने होते, तो इफ आई डिवाइड इन 6 पार्ट्स, सो इट इज 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6 एंड दिस वन इज 6/6. बेसिकली 1 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 6/6, और 6/6 कट के बना गया ना. ठीक है, देख पा रहे हो मैं कैसे नंबर्स लिख पा रहा हूँ, ध्यान से देखो. मैंने क्या किया, 0 से 1 के बीच में नंबर लिखने की कोशिश की. मैंने 6 पार्ट्स में डिवाइड करने की कोशिश की. एक पार्ट, 2, 3, 4, 5th and 6th one. So what to do? If I want to divide this into 6 parts, so I have to divide by 6, 6, 6, 6, 6, and here also 6. So this is a 0/6. This is 1. अब 0/6 0 ही होता है ना. Now this is a 1/6. This is a 2/6. This is 3 divided by 6. This one is a 4 divided by 6. And this one is a 5 divided by 6. And last one is 6 divided by 6. And 6 divided by 6 came out to be 1 only. ठीक है. So these are the rational numbers in between 0 and 1. Now, here it is 1/4 and 1/2. And we have to write in between them. ठीक है. So first of all, I want you guys to pause it and write everything here. ठीक है. Let me move forward. 1/4 और 1/2 के बीच में मैं रैशनल नंबर लिखना चाहता हूँ. So what is the procedure? Just now be very careful. What is the question? We have to write 1/4 and 1/2. In between them a rational number. 1/4 और 1/2 ये दो नंबर्स हैं, मुझे इनके बीच में एक रैशनल नंबर लिखना है. So how to write it? Now the procedure is add both the numbers. 1/4 plus 1/2. आप दोनों नंबर्स को ऐड कर लो. That is addition. Now मैंने आपको अभी सिखाया रैशनल नंबर्स को कैसे ऐड करते हैं. तो हाउ टू ऐड इट? एलसीएम लो. 2 और 4 का जब आप साइड में एलसीएम लेते हो तो इट केम आउट टू बी 4. ठीक है, और उसके बाद यू विल गेट इट फाइनली टू बी 3/4. सो इन दोनों को ऐड करके जो अपना आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3/4. नाउ व्हाट टू डू? दैट वाज अ स्टेप 1 कि आपके पास एक नंबर है 1/4 और एक नंबर है 1/2. आप दोनों को करो ऐड और इट केम आउट टू बी 3/4. स्टेप 2, जो आपके पास नंबर आया उसको डिवाइड करो 2 से. द नंबर यू हैव गॉट डिवाइडेड बाय 2, उस नंबर को डिवाइड करो 2 से. ठीक है, तो इफ यू आर डिवाइडिंग दैट नंबर बाय 2, इट मींस मैंने आपको रूल सिखाया हाउ टू डिवाइड. आपको क्या करना है, कन्वर्ट दिस इनटू मल्टीप्लाई और इसको कर दो उल्टा. दैट इज 2 को 1/2. डिवाइड को कर दो कन्वर्ट मल्टीप्लाई में और 2 का कर दो 1/2. जो पीछे होता है दैट इज योर राइट हैंड साइड, इसको आप कर दो रेसिप्रोकल. तो 3/4 into 1/2 came out to be 3/8. Very good. So 3/8 is a number which lies between 1/2 and between 1/4 and 1/2. Are you guys getting my point? Basically मैं क्या कहना चाहता हूँ, ध्यान से सुनो. हमने किया क्या है, हमने क्या किया है, 1/4 और 1/2 का हमने मिड पॉइंट निकाला है, बिकॉज मिड पॉइंट विल बी इन बिटवीन देम और दैट विल बी अ रैशनल नंबर. हमने क्या किया, दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाय 2. इस नंबर को प्लस किया इस नंबर के साथ और डिवाइड बाय 2 किया ताकि मिड पॉइंट आए. तो हमने किया सबसे पहले दोनों को ऐड, उसके बाद हमने कर दिया उसे डिवाइड. दैट इज 3/4 डिवाइडेड बाय 2.
So finally it came out to be divide को convert किया multiply 2 का 1/2 it is 3/8. So add both the numbers and divide by 2. So it came out to be 3/8. So 3/8 lies between 1/4 and 1/2. Cool. I am just waiting it. Write down everything from the screen. Cool. So I would like to inform you that थोड़ी देर के अंदर हम एक motivational video देखने वाले हैं so that you guys should be energetic and motivated. ठीक है? That is a bit of IIT only, but ठीक है. All the students are for the competition here, ना? So that will motivate you all, whether you are of the NEET student of commerce or IIT and whatever. So summarize कर लेते हैं. आज का लेक्चर हम बहुत ज्यादा burden नहीं लेने वाले हैं. सिर्फ हम एक start कर रहे थे so that you guys can start your studies. ठीक है, एक और वीडियो लेक्चर एज आई हैव टोल्ड यू सॉल्यूशन वीडियो वेडनेसडे को आएगा, सो डोंट वरी. समराइज, आपको पूरी समरी लिखनी है कॉपी में. ठीक है, अ रैशनल नंबर इज अ नंबर, मतलब एक रैशनल नंबर एक नंबर है व्हिच कैन बी रिटन एज p by q, जिसको p डिवाइडेड बाय q के फॉर्म में आप लिख सकते हो, जहां पे p और q इंटीजर्स हैं, जहां पे p एंड q इंटीजर्स हैं, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0, एंड q 0 के इक्वल नहीं है. ठीक है, ये हमने पढ़ा था. वेरी गुड. Rational numbers, second point. Rational numbers are commutative and associative under addition and multiplication. ध्यान से देखो. I just like to remind you, जहां पे हमने addition और multiplication property लिखी है rational numbers में, वहां पे property के बगल में वो जो a upon b plus c upon d लिखा है, उसके रिजल्ट के बगल में आप लिख लो commutative property. ठीक है, commutative property. Basically जो रैशनल नंबर्स हैं इनके एडिशन कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, और मल्टीप्लिकेशन के पास एसोसिएटिव लिख लो. बेसिकली यू गाइस शुड अंडरस्टैंड कि रैशनल नंबर्स फॉलोज कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज. नाउ थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट 0 इज एन एडिटिव आइडेंटिटी फॉर रैशनल नंबर्स. 0 एक एडिटिव आइडेंटिटी है, मतलब किसी भी नंबर के साथ अगर आप 0 ऐड कर देते हो तो वो नंबर एज इट इज रहेगा, उस नंबर को कोई फर्क नहीं पड़ा. तो 0 ऐड करने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, इसीलिए 0 इज नोन एज एडिटिव आइडेंटिटी. नाउ 1, फोर्थ पॉइंट, 1 इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर द रैशनल नंबर. मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लाई. तो 1 एक ऐसा नंबर है जिसको आप मल्टीप्लाई करते हो किसी नए नंबर के साथ तो नंबर विल रिमेन सेम, मतलब 1 कोई भी चेंजेस नहीं लाने देगा. तो 1 इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी. नाउ एडिटिव आइडेंटिटी 0 है, बट एडिटिव इनवर्स पूछा जाए, एज आई हैव टोल्ड यू, पॉजिटिव का नेगेटिव करना है, नेगेटिव का पॉजिटिव. तो एडिटिव इनवर्स ऑफ p डिवाइड बाय q, ये एक पॉजिटिव नंबर है तो इसका आएगा माइनस p डिवाइड बाय q, एंड वाइस वर्सा, मतलब नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव. तो एडिटिव इनवर्स जो है पॉजिटिव का नेगेटिव ऐसे लिखा है. एडिटिव आइडेंटिटी और एडिटिव इनवर्स को बहुत अच्छे से देखना है, स्टूडेंट डोंट गेट कंफ्यूज्ड. कूल. So I'm just waiting, I'm just giving time to write all these points immediately. These are quite very important summary. ठीक है. Now the reciprocal of the multiplicative inverse of p by q. रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो किसी भी नंबर p by q का रेसिप्रोकल या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, उसका उल्टा. p by q into a by b अगर दोनों मल्टीप्लाई करके 1 आ जाए, बेसिकली मैं आपको बताऊं तो सपोज करो यहाँ 19/7 लिखा हो, उसका उल्टा कर दो 7/19, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आता है. ठीक है. One more property I want to discuss with you, that is distributive property. तो distributive property क्या है, for all the rational numbers, that is a, b and c, a multiplied by ब्रैकेट के अंदर b plus c can be written as, देखो a multiply है, ब्रैकेट के अंदर b plus c है, सबसे पहले a multiply होगा b से, that is a into b, फिर आएगा बीच में प्लस, फिर a multiply होगा c से, that is a into c. ठीक है, तो यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ आएगा a into c. ठीक है ना, a into b plus a into c. And one more, a multiplied by ब्रैकेट के अंदर b minus c can be written as a into b, that is a into b minus a into c. Again mistake here, here it will come a into c. So students, here it will come a into c, यहाँ पे भी आएगा a into c. तो this is known as the distributive property. देखिए यहाँ पे चीजें डिस्ट्रीब्यूट हो गई, a आया बाहर से, वो b के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, मल्टीप्लाई हो गया, प्लस लगा बीच में, और a आया बाहर से, वो c के साथ मल्टीप्लाई हो गया, a into c हो गया. Here also
ए आया बाहर से, वो बी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, बीच में माइनस, और ए आया बाहर से, तो ए इंटू सी, दिस इज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। गेटिंग माई पॉइंट? सो आई थिंक दैट हमने थोड़ा बहुत आज स्टडीज की है, चीजों को समझा है, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऑब्जर्व किए हैं। रेस्ट फिर असाइनमेंट में क्वेश्चंस भेजूंगा, दैट इज फॉर यू, ठीक है, यू गाइस हैव टू स्टडी दैट। इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर बिकॉज हमें बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। सो इट इज जस्ट द स्टार्टिंग ऑफ आवर फाउंडेशन क्लासेस, सो बहुत हेक्टिक नहीं कर रहे हैं हम इसको। एंड जस्ट फॉर यू गाइस एक मोटिवेशनल वीडियो तो बनता ही है बॉस, ठीक है, सो दैट विल यू एनकरेज यू, नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर। सो चलो लेट अस शेयर दिस थिंग, फिर कुछ बातें करते हैं। दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, नजर में ख्वाबों की बिजलियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, हवा के झोंकों के जैसे आजाद रहना सीखो, तुम एक दरिया के जैसे लहरों में बहना सीखो, हर एक लम्हे से तुम मिलो खोले अपनी बाहें, हर एक पल एक नया समा देखिए निगाहें, जो अपनी आंखों में हैरानियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम, दिलों में तुम अपनी बेताबियां लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। Good evening, friends. I declare the Inter-IIT Sports Meet open. All the very best. Played in the right spirit.
Cool. So I think that you guys have enjoyed this video. Basically a bit of edit is there because ये video मैंने around 3-4 years पहले बनाई थी, but इस video को अब edit नहीं कर पा रहा हूँ. So the edits are there. The first, Raghuram Rajan is not our former RBI governor. ठीक है? So at that time he was. So there was an edit. Please, I'm sorry for that. Second one is that there are around 23 IITs, new IITs now. It is 16 one is old one, now 23 has been updated. ठीक है? So rest, I think that you guys would have feel motivated, and I being Roshan Jivnani, your mathematics mentor of Gravity Academy, started your lecture 1. My dear class 8 students, I hope that you guys have enjoyed the session. Okay, and next lectures we will be dealing lots of questions and lots of numericals and theory also. It was a start, so I thought कि थोड़ा chill किया जाए आपके साथ. So stay home, stay safe, enjoy करो. ठीक है, घर में मम्मी पापा को परेशान मत करो, पढ़ते रहो. जय हिंद. So वंदे मातरम, and we'll meet you in the next lecture. If you guys feel any difficulty or your parents, you guys can connect with me anytime. ठीक है, I will be happy to help. So submit your homeworks, na? Please submit your homeworks, and you have to write all these things which you have discussed in your fair copy. And homework you can do in a rough copy or assignment copy or whatever. ठीक है, तो आप मुझे submit कर दीजिएगा. I will check. Submission is till Tuesday night, and Wednesday you will have a video solution. Cool. Thank you guys.